हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बतलाने जा रही हूँ और वो क्वेश्चन है सटायर इन गुलिवर्स ट्रेवल्स। ये यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है और आज मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन का आंसर बतलाऊँगी। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बतलाती हूँ। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ा दूँगी और उसके बाद मैं उसका हिंदी भी आपको बताऊँगी। Jonathan Swift's Gulliver's Travels is considered as the greatest satire ever written in English. Jonathan Swift's Gulliver's Travels chronicles the fantastic voyage of Lemuel Gulliver, principally to four marvelous places, namely Lilliput, Brobdingnag, Laputa, and Houyhnhnms. Swift satirizes people of England through these voyages. Through part 1, that is, the voyage to Lilliput, the general satire revolves around man as a political animal, scheming and corrupt. The height of Lilliputian are little, and they cannot see the objects far to them. Actually, this is a satire. This shows the characteristics of Europeans who can see only instant result, that is, they are not far-sighted in terms that they cannot see the things or object which is far to them. They are more bothered, or you can say they give priority to instant result. They are not futuristic. That is, we can see the Europeans are only stick to the present, how they can satisfy present need without thinking for future. The Gulliver is so huge and Lilliputian is only of 6 inches. Gulliver can destroy them in a minute. But he didn't it. They put so many charges on Gulliver and they put so many conditions on him only to show the power. This is also example of satire. This is satire on false power, or you can say false pride. Breaking of egg is also part of a satire. Till now I have told you the satire in first part. If we talk about the second part, there is also satire when Gulliver was talking to king and he was telling him about the power and about the weapons, how weapons are used to occupy others' land, etc. etc. All these are part of satire. In third part, that is Voyage to Laputa, there is also a big satire on experiments. When Gulliver went to academy, he watched so many irrelevant projects, experiment. All these are part of satire. At that time in England also so many irrelevant projects were going on, and this was satire on that. And finally, the last part is a great satire on human being. If you will write about all this, you will definitely get good marks. अब मैं आप लोगों को ये सारी बातों को वापस से हिंदी में बतला देती हूँ, समझा देती हूँ। तो जो गुलिवर्स ट्रेवल है उसका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सटायर। और जब भी सटायर के लिए लिखने के लिए बोलेगा, जब भी क्वेश्चन आएगा कि आप सटायर के बारे में लिखिए गुलिवर्स ट्रेवल में एज ए होल, तो आप सबके बारे में लिखेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आप सीक्वेंस वाइज चलें, मतलब पहले फर्स्ट पार्ट में कहाँ सटायर है, फिर सेकंड पार्ट में कहाँ सटायर है, फिर थर्ड पार्ट में कहाँ है और फिर फोर्थ पार्ट में सटायर क्या है, ऐसे आप लिखेंगे और सबको कोट भी कर देंगे। कोट करने से अच्छे मार्क्स आते हैं। तो पहले पार्ट में कुछ ऐसा सटायर है कि जो लिलीपुटियंस हैं वो लोग को अपने आप पे काफ़ी प्राइड होता है। वो लोग छोटे रहते हैं, उसको गुलिवर्स कभी भी नष्ट कर सकता है। वो लोग बहुत छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन वो लोग को अपने पावर पे बहुत
नाज है, बहुत घमंड है, हम ये भी कह सकते हैं। इसीलिए तो वो लोग गुलिवर्स पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे लिमिटेशन लगा करके रखे थे। गुलिवर्स उन सबको ब्रेक कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। तो जो लिलीपुटियंस है उनके इस फॉल्स प्राइड पर सटायर है। ठीक है, पहला सटायर ये है। दूसरा सटायर ये भी है कि वो लोग किसी को भी कोई भी जॉब देते थे तो वो लोग अधिक प्रेफर करते थे मोरलिटी को टैलेंट के जगह। तो ये भी एक सटायर है। तीसरा ये भी एक सटायर है कि जो लिलीपुटियंस हैं वो लोग को दूर का नहीं दिखता था, केवल पास का दिखता था। तो ये एक सटायर है कि वो लोग फ्यूचर को नहीं देख सकते थे, वो लोग बस इंस्टेंट रिजल्ट पर फोकस करते थे। ये सारा फर्स्ट पार्ट का सटायर है। इसके अलावा जो एक को ब्रेक करने वाला पोर्शन है वो भी सटायर का हिस्सा है। इसके अलावा अब हम सेकंड पार्ट का बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी सटायर है। गुलिवर जाता है ब्रॉबडिग्नेग, वहाँ पर वो वहाँ के किंग को बतलाता है कि कैसे गुलिवर के देश में बड़े बड़े वेपन्स होते हैं जिससे वो दूसरे देश को जीत सकता है, वो वेपन्स कितने डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इस पोर्शन में भी सटायर है। यदि हम थर्ड पार्ट की बात करें वॉयज टू लापुता की, तो हम थर्ड पार्ट में देखते हैं कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जो कि बहुत ही इरेलीवेंट है। जैसे कि जो छत है वो सबसे नीचे बने और उसके बाद सारा जो पोर्शन है वो ऊपर बने, या फिर स्मेल करके किसी कलर को पहचान लेने वाला एक्सपेरिमेंट हो। ये सारा जो एक्सपेरिमेंट है ये भी सटायर का ही हिस्सा है। ऐसा था कि उस समय इंग्लैंड में भी बहुत सारे इरेलीवेंट एक्सपेरिमेंट चल रहे थे और जो स्विफ्ट है उसी पर सटायर किए हैं। इसके अलावा वॉयज टू लापुता में ही हम देख सकते हैं कि बहुत सारे घोस्ट आते हैं और वो बतलाते हैं कि जैसा हिस्ट्री में लिखा हुआ है वैसे उस तरीके से उनकी मृत्यु नहीं हुई है। तो ये भी एक सटायर है। ये सटायर है हिस्टोरिकल फैक्ट पर कि कैसे बहुत बार हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो रॉन्ग होता है। और इसके बाद जो लास्ट पोर्शन है, जो इसका लास्ट पार्ट है, वॉयज टू हुइनम्स, ये भी बहुत बड़ा सटायर है ह्यूमन बीइंग पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।